بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عملہ تھا اس میں ملوث، جن کی ڈائریکٹ ذمہ داری تھی، ان کو وزیر بلدیات صاحب نے پہلے ہی دن ان کو معطل کیا۔ آج چیف منسٹر صاحب نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی معطل کر دیا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ فوری طور پر ایف آئی آر کاٹی جائے اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 5 منزلہ عمارت گرنے کے حادثے پر ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ غفلت ثابت ہونے پر ایف آئی آر میں بھی نام ڈالا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس کے بعد صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے بتایا کہ عمارت کا 2022 میں سروے ہوا تو موجودہ ڈی جی ایس پی سی اے ہی تعینات تھے، دیگر افسران کا تعین کیا جا رہا ہے۔ شرجیل میں نے بتایا کہ عمارت حادثے پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ 2 دن میں آئے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ذیل انجار نے کہا کہ مجرمانہ غفلت کرنے والوں کو بہت جلد گرفتار کریں گے۔ بغدادی سانحے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان۔ جمعے کو لیاری میں عمارت گرنے سے 27 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے تھے۔ کراچی میں انتہائی خستہ 51 عمارتیں گرانے کا فیصلہ، کمشنر کو عمارتوں میں واقع یونٹس اور افراد کی فہرست تیار کرنے کی ہدایت۔ شہر میں خطرناک قرار دی جانے والی 588 عمارتوں میں سے متعلق فیصلہ 2 ہفتوں کے اندر کیا جائے گا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا خطرناک عمارتوں کو نوٹس جاری کرنے سے کام ختم نہیں ہوتا، لوگوں کو نکالنے کے لیے بھی کارروائی ضروری ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا قانون مزید سخت کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ حکومت کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں عمارت گرنے کے 4 روز بعد بھی متاثرین کو حکومت نے کوئی متبادل رہائش مہیا نہیں کی۔ ہندو کمیونٹی کے شری رام ناتھ مہاراج کا کہنا ہے کہ سانحے میں ہلاک ہونے والے 27 میں سے 20 افراد کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے۔ متاثرین اپنے رشتہ داروں کے پاس یا مہیشوری کمیونٹی سینٹر میں ہیں۔ وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ معاملے کو دیکھیں۔ یہ سانے کے حوالے سے تو ہم بھی ہل گئے ہیں، کیونکہ میں 1-1.5 سال سے اپنی بلڈنگ کا ڈیمونیشن کے لیے درخواست دے چکا ہوں۔ اس پہ کوئی کام، کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ سامان سارے موجود ہیں، تو اس کے لیے کہہ رہے انجینئر آئیں گے، چیکنگ وغیرہ کریں گے، وہ پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کے سامان نکالنے دیں گے یا اس کو گرائیں گے یا ان کو واپس بیٹھنے دیں گے اندر۔ لیاری میں عمارت گرنے کے بعد اطراف کی خالی کروائی گئی عمارتوں کے مکین بھی پریشان، کہتے ہیں کچھ معلوم نہیں ان عمارتوں کو گرایا جائے گا یا انہیں واپس رہائش کی اجازت دی جائے گی۔ انہیں اپنے گھروں سے سامان اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ امریکی صدر نے دھمکی دی ہے کہ جو ملک بھی برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ خبردار کیا کہ امریکہ مخالف پالیسی کا ساتھ دینے کے معاملے پر کسی ملک کو رعایت نہیں ملے گی۔ آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط ارسال کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم آج وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ کہتے ہیں اس ہفتے کے دوران حماس کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو سے ایران کے ساتھ مستقل ڈیل پر کام کرنے پر بات چیت کریں گے۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی برکس ممالک کو 10% اضافی ٹیرف کی دھمکی پر چین کی مخالفت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹیرف کے دوسروں پر دباؤ ڈالنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ٹیرف کا استعمال کسی کے مفاد میں نہیں۔ برکس ممالک کا امریکی صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر یک طرفہ ٹیرف اقدامات پر تحفظات کا اظہار۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا بھی مطالبہ۔ برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ سمیت 10 ملکوں پر مشتمل گروپ برکس کے 2 روزہ اجلاس کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹیرف میں اضافہ عالمی تجارتی تنظیم کے قواعد کے منافی ہے۔ عالمی تجارت میں کمی، سپلائی چینز متاثر ہونے اور غیر یقینی صورتحال کا خطرہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے برکس رہنماؤں سے ویڈیو لنک سے خطاب میں قومی کرنسی کے استعمال پر زور
दिया। कहा मुस्तकबिल उभरती हुई मंडियों का है जिन्हें अपनी कौमी करेंसियों को तिजारत के लिए ज्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। आला सतह इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान लागत और नौयत का तखमीना AI और बॉट्स करेंगे। नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग के दौरान 92% से ज़ायद बेहतर कारकर्दगी सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, FBR की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने, शफाफियत लाने के लिए मज़ीद मौसर बना रही हैं। इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल होने से जराइम में वाज़ेह कमी आएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो है, जहाँ तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल हल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ 3 बार ऑपरेशन किए और तजावुज़ात फिर बना दी गई। इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के बजाय जुर्माने आयद करने से तजावुज़ात में कमी आई है। क़वानीन जब तक सख्त नहीं होंगे मसाइल हल नहीं होंगे। कहा बजट पर जो मसाइल हैं इस पर जो वो कर सकते हैं करेंगे। 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करूंगा। मैं हुकूमत से भी कहूंगा और मैं अपोजिशन से भी कहूंगा, डायलॉग की गुंजाइश को मत भूलें। पार्लियामेंट का हुस्न बातचीत है, डायलॉग है। मैं इमरान खान नहीं हूँ, मैं लोगों को नाअहल नहीं कराऊंगा। मैं वो राइट करूंगा जो आने वाले वक्तों में तय करेगा कि ये ऐवान हक के नुमाइंदगी के ऐवान कैसे चलेगा। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला करने में 26-27 दिन है। बैठ कर बात कर लें, अभी भी वक्त है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की पेशकश, साथ वार्निंग भी दी कि पार्लिमानी पार्टी बैठकर बात नहीं करेगी तो 63 का फैसला सामने आ जाएगा। वो 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करेंगे। अपोजिशन से ज्यादती नहीं की, अपना आईनी किरदार अदा किया। क्या शोर शराबे से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बानी PTI को कोई फायदा हुआ? ऐसे इक़दाम से आप तीसरे निज़ाम की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। वो बानी PTI की तरह नहीं है, लोगों को नाअहल नहीं करवाएंगे। KP हुकूमत हटाने से मुताल्लिक़ फ़िलहाल नून लीग ने किसी जमात से रब्ता नहीं किया। ज़रूरत पड़ी तो मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की GNA से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हटाने के हवाले से कोई बात खारिज इम्कान नहीं। सियासत में फैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। तरबीला डैम के स्पिलवे खोलने से दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल। आचक की तहसील खुसरो फार्मूले के मकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई। गुज़श्ता साल भी सैलाबी रैला चौकी का कुछ हिस्सा बहा ले गया था। डेरा गाजी खान में वजोर नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब रैला गुजर रहा है। हैदराबाद में न्यू भलेली कैनाल में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। करीबी देहात मुतासर। घोचकी में काजी नहर में 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से नहर में पानी की तरसील रोक दी गई। चकवाल और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का इम्कान है। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश की पेश गोई। KP और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी 9 जुलाई तक बारिशों की पेश गोई। अटक और DG खान में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब की इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा तग़ियानी से नुकसान रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। दरियाओं के किनारे तमाम हसास मकामात की फौरी जाँच की जाए। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई जाए। 27 जून को दरियाई स्वात में डूबने वाले सयाहों को होटल गार्ड ने दरिया में जाने से रोका तो वो दूसरे रास्ते से चले गए। दरिया में पानी की सतह बढ़ने पर सुबह 9:45 पर रेस्क्यू को कॉल किया गया। रेस्क्यू हुक्काम 20 मिनट बाद वाक़ई की जगह पर पहुंचे। 17 फंसे सयाहों में से 4 को उसी वक्त रेस्क्यू किया गया। सानिया स्वात पर कमिश्नर मालकन डिवीजन आबिद वजीर ने इंक्वायरी कमेटी को तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा सैलाब के खतरात के पेश नज़र तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट किया गया था। कमेटी ने सवाल किया कि ऐसे वाक़े से बचने और सयाहत के फ़रोग के लिए मुस्तक़बिल में क्या होना चाहिए। कमिश्नर मालकन ने जवाब दिया कि सयाहत एक अलग शोबा है, ये तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं।
वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कौमी परचम का सफ़ेद रंग दरअसल हमारे दिलों में होना चाहिए। हमें नफ़रतों के बीज बोने की बजाय मोहब्बतें बांटनी हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा हमें मिलकर मुआशरे की बेहतर तरबियत का इंतज़ाम भी करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। PFUJ के वकील ने दलाइल का आगाज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस। 25 जुलाई को नेपरा के रीजनल हेड भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लोड शेडिंग किस तरह हो रही है। के इलेक्ट्रिक शहर में जो कुछ कर रहा है हम सब समझते हैं, शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है, मगर ये केस आईनी बेंच में जाना चाहिए था। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा, रेगुलर बेंच पहले भी इस नौइयत के केसेस सुन चुकी, डिक्लेरेशन चाहते हैं, हुक्म नहीं। दरख्वास्त जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैनों की जानिब से दायर की गई है। सिंध में कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक नीम हुनरमंद अफराद के लिए कम अज कम उजरत 41,280 और हुनरमंदों के लिए 48,910 रुपए होगी। कम अज कम उजरत में इजाफा सिंध मिनिमम वेजेस एक्ट 2015 के तहत किया गया है, जो रवा माह से नाफिजुल अमल है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि अब हुकूमत की तवज्जो स्ट्रक्चरल और वस्त मुद्दती मुआशी इस्लाहात पर है। इस वक्त शरह मुबादला मुस्तहकम है, महंगाई बढ़ने की शरह हदफ के मुताबिक रहने की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी 2023 से 5 गुना ज़्यादा की सतह पर हैं। स्टेट बैंक की वी फाइनेंस लॉन्च तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, इस प्रोग्राम को माली इदारों, तालीमी इदारों और निजी शोबे तक लेकर जाएंगे। तकरीब में खिताब में डायरेक्टर ADB क्रिस्टियन सीनियर ने कहा, प्रोग्राम के तहत 20 लाख खवातीन को $50 करोड़ कर्ज फराहम करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से जख्मी एक और शख्स दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पसंद की शादी पर पेश आया। लड़की के वर्सा की फायरिंग से लड़के का मामू और भांजा जाँ बहक हुआ। हमलावर फायरिंग के बाद लड़की को भी अपने साथ ले गए। चंद माह कबल मकतूल शुमन ने बोलान में साइमा से पसंद की शादी की थी। हवलदार लालक जान शहीद निशाने हैदर का 26वां यौम शहादत। कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी की लालक जान शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ्स का हवलदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक आज के दिन 1999 में हवलदार लालक जान शहीद ने अपनी पोस्ट का कामयाबी से दिफा किया। दुश्मन तमाम दिन उनकी पोस्ट पर गोले बरसाता रहा। शदीद जख्मी होने के बावजूद लालक जान शहीद ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हवलदार लालक जान के जवाबी हमले में दुश्मन को भारी नुकसान के साथ मुंह की खानी पड़ी। सदर और वज़ीर आज़म का हवलदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, लालक जान ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके। शहीद की बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद की बहादुरी नई नस्ल के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि लालक जान की दास्तान शुजाअत रहती दुनिया तक कौम का फ़ख्र और तारीख़ का असासा रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद की जुर्रत और बहादुरी कौम का फ़ख्र है। बल्दिया उज़्मा कराची का शहर के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में इस वक्त 200 से ज़ायद कब्रिस्तानों में से सिर्फ 38 रजिस्टर्ड हैं।
तमाम कब्रिस्तानों के इंचार्ज फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इंतजामिया कब्र के निर्ख 14,300 रुपए से ज्यादा वसूल न करे। लाहौर के इलाके शहादरा टाउन में कमसिन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक कार 13 से 14 साल का लड़का चला रहा था। शहरियों ने कमसिन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आईजी पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म, कहा बगैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर ना आने दें। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के ज़ेर एहतमाम कराची बंदरगाह पर 2 नई बोट्स की शमूलियत की तकरीब। मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नई बोट्स का मुआयना किया, उनमें सफ़र भी किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में जदीद बोट्स की शमूलियत को सराहा। थरपारकर के पहाड़ी इलाके कारुंजर में डूबकर लापता होने वाले सयाह की लाश निकाली गई। जाँ बहक नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। इतवार को 11 सयाह रैले में फंस गए थे, 10 सयाहों को बचा लिया गया। गजा पर इजरायली हमले जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली हमलों में कल से 82 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की दरअसल तल अबीब में हज़ारों अफराद का एहतजाज, गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि एलॉन मस्क का नई सियासी जमात बनाना एक फजूल अमल है। मस्क के सियासी जमात बनाने के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि एलॉन मस्क ने तफरीह के लिए पार्टी बनाई है जिसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी कामयाब है, डेमोक्रेट्स रास्ते से हट चुके, मगर फिर भी 2 जमाती निज़ाम अभी भी कायम है। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक। समर कैंप में मौजूद 10 बच्चियां और एक काउंसलर समेत 41 अफराद अब भी लापता, तलाश जारी। अमरीकी सदर ने सैलाब से मुतासिरा रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। लापता अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियाँ और ड्रोन्स का इस्तेमाल। मुख्तलिफ इलाकों में मकानात, गाड़ियाँ कई फुट पानी में डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। ताइवान के जनूबी इलाकों में तूफान दनात से तबाही, शदीद बारिशों के बाद स्कूल बंद और 300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 5 लाख घर बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक और 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। चीन के साहिली इलाकों में भी एमरजेंसी नाफिज। ऑस्ट्रेलियाई खातून पर शौहर के वालिदैन समेत 3 अफराद को जहरीले मशरूम खिलाकर कत्ल करने का जुर्म साबित हो गया। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने जियूरी ने खातून को 3 अफराद के कत्ल के केस में कसूरवार करार दे दिया। एरन पेटरसन ने जुलाई 2023 में अपने रिश्तेदारों को दावत पर बुलाकर जहरीले मशरूम्स खिला दिए थे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। वो अमेरिका में 20 लीग खेल रहे थे। ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ को ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी है। उनके दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शमूलियत के इम्कानात खत्म हो गए। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली हॉरर फिल्म दीमक का एहसास चीन में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिल्म के हिदायतकार राफे राशिदी और अदाकारा सोनिया हुसैन ने अवार्ड वसूल किया। फिल्म 6 जून को रिलीज की गई थी।